Okay, so let's get started, guys, with the today's session. This is Ruhi, your friend, mentor, educator, and guide at Unacademy. So let's get started, guys, with the daily current affairs quiz. So at every day at 6 p.m. Every day at 6 p.m. on this channel, I'll be bringing to you the daily current affairs quiz, which is very important for all your bank exams. ओके सो सारे बैंक एग्जाम्स के लिए क्विज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी. सो डेली 15 to 20 MCQs विल बी कवर्ड बाय मी हियर ऑन द बैंक प्रो इटसेल्फ. सो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है. एंड 6 बजे हर रोज लाइव क्विज आपके लिए यहीं पर होगा. So guys, these are my upcoming and ongoing batches for SBI, IBPS and RRB. ठीक है, RRB के लिए, SBI के लिए और IBPS के लिए मेरे बैचेस चल रहे हैं गाइज अनअकैडमी पे. सो कल से ही बैच स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स का. एंड आने वाले दिनों में आपको कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी बैचेस मेरे प्रोफाइल पे विजिबल होंगे, ठीक है. तो 14 अप्रैल से आपका बैंकिंग अवेयरनेस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है. एंड इन दिस अपकमिंग बैचेस आई विल बी कंप्लीटिंग योर एंटायर डिटेल्ड करंट अफेयर्स along with static awareness, comprehensive batches for banking, financial, insurance and economic awareness, and we'll also be having the batches for MCQs based on 1000 plus MCQs from banking and financial affairs. So this will be your basic to advanced batches, guys, for all the banking examinations. For the next 4-5 months, you don't have to study anything besides this if you are following the sessions religiously. Okay, you can follow me on Unacademy and you can visit my profile, get the subscription. Under the subscription, you get access to all the India's top educators. There are live quizzes, doubt clearing sessions and all, everything at your disposal. Each and every subject is covered by the well-known renowned faculties on Unacademy. So you can go for the subscription, and while going for it, do not forget to use this code RUHILIVE to avail a 10% discount. Okay, so guys, just type in the comment if should I begin with the session. Should I begin with the session? Should I move ahead with the very first question of the day? Okay, so let's get started, guys, with the very first question on your screen. At which of the following Indian Institute of Management did Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank inaugurated the Andaman, the Center for Happiness? IIM Indore, IIM Ahmedabad, IIM Jammu या फिर IIM Kozhikode? आंसर इन द चैट. इन में से रमेश पोखरियाल ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, he has inaugurated Andaman, the Center for Happiness in IIM Jammu. Very correctly answered by all of you. IIM Jammu में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने अंडमान द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का इनॉग्रेशन किया है. याद रखना है, इस सेंटर का इनॉग्रेशन वर्चुअली किया गया है. गाइस, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है सेंटर का नाम क्या है. द अंडमान द सेंटर फॉर हैप्पीनेस. Next, what is the rank of India in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2021? So, इंडिया का रैंकिंग आपको बताना है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 147th, 140th, 150th या फिर 142nd रहा है. वेरी करेक्ट, 140th रैंक रहा है इंडिया का. सो गाइस, हियर आर सम फैक्ट्स. 28 प्लेसेस से इंडिया का रैंक स्लिप हो चुका है टू रैंक 148. 140वां रैंक है 156 कंट्रीज में. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक. सो गाइज, इट इज नॉट अ गुड रैंक. आउट ऑफ 156 कंट्रीज द रैंक इज 140th, बिकमिंग द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया. ठीक है, सो साउथ एशिया का तीसरा वर्स्ट परफॉर्मर 140th रैंक के साथ यहाँ पर 28 प्लेसेस का ड्रॉप डाउन इंडिया की पोजीशन में देखने मिला है. सो लगातार
for the 12th time, Iceland is the most gender equal country in the world. Very very important, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में. तो इट इज फॉर अ कंसेक्यूटिव 12th टाइम आइसलैंड इज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन दी वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रियल इंडिया जीडीपी ग्रोथ would be in the range from 7.5% to what percent during the current fiscal? 12.5%, 9.5%, 11% या फिर 13%. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ किस रेंज में रहा है? 7.5% से लेकर कितना परसेंट? 12.5, 9.5, 11 या फिर 13. वेरी करेक्टली आंसर्ड बाय Yamini here. Okay, so 12.5 it is. Okay, Akshita, Saurabh. So वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है यहाँ पर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी देखी गई है कोविड-19 इफेक्ट्स की वजह से. हमारे इकोनॉमी में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रहा है ये 7.5% से 12.5% तक के करंट फिस्कल का दिखाया गया है. Which film won the Best Film Award at 66th Annual Filmfare Awards? थप्पड़, मलंग, अंग्रेजी मीडियम या फिर गुलाबो सिताबो? Yes, 2021-22. Yes, Shubha. Current fiscal. Next question. Best Film Award at 66th Annual Filmfare Awards. Very correct. थप्पड़ is your correct answer. Okay, तो 66th Annual Filmfare Awards के announcement की गई है. Basically ये जो event था, this was hosted by actor Rajkumar Rao and Ritesh Deshmukh, which is very important. The host of the event Rajkumar Rao और Ritesh Deshmukh रहे हैं. Best film थप्पड़ को मिली है. Best film critics में प्रतीक वाट्स, एब आले ऊ इस फिल्म के लिए. देन बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए. ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है. रिमेंबर गाइस, फिल्म थप्पड़ है. बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स प्रतीक वाट्स, एब आले ऊ फिल्म के लिए मिला है क्रिटिक्स के लिए. बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत को मिला है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए. अगला सवाल है, इंडिया हैज रिकॉर्डेड द करंट अकाउंट डेफिसिट ओके ऑफ व्हाट परसेंट इन दिसंबर 2020 क्वार्टर. दिसंबर 2020 क्वार्टर के लिए इंडिया ने कितना करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया है? करंट अकाउंट डेफिसिट बीओपी का एक अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जहां पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एक्सटर्नल बोरोइंग्स ये सब रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे दिसंबर 2020 का जो डेटा रिलीज किया गया है इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी इंडिया का रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द करंट फिस्कल विद द गैप कमिंग टू $1.7 बिलियन विच इज 0.2% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, सो 0.2% जीडीपी इन द दिसंबर क्वार्टर 2020. Which movie bagged the top prize at 2021 Producers Guild of America Awards? इनमें से किस मूवी को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए टॉप प्राइज मिला है? So you have Minari, Sound of Metal, Another Round या फिर Nomadland. Come on, answer in the comment. किस फिल्म ने 2021 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता है? सो दिस मूवी इज Nomadland. Okay, so Keanu Reeves' Nomadland, which has received a major boost ahead of Oscars as it bagged the first prize, the top prize in 2021 Producers Guild of America Awards. PGA प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में नोमैडलैंड इस मूवी ने टॉप प्राइज हासिल किया है. अगला सवाल है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव.
mark it as a sure short question. वेरी इंपॉर्टेंट, पीएलआई स्कीम के तहत कैबिनेट ने कितना इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दिया है? हाउ मच ऑफ अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए? वेरी करेक्टली आंसर पायल, यामिनी, सौरभ. द आंसर इज 10,900 करोड़. ओके, 10,900 करोड़. ओके, याद रखिए गाइस, पीएलआई स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 10,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है. अगला सवाल है, उत्कल दिवस या फिर उत्कला दिवासा इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा स्टेट आफ्टर अ स्ट्रगल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. सो गाइस, ये किस स्टेट में मनाया जाता है? नाम से ही आप पता कर सकते हो, उत्कल दिवस या फिर उत्कला दिवस किस साल में? कैन यू टेल मी? वेरी करेक्ट विजेंद्र, सौरभ यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए. ओके, so we have April 1, April 2, April 3 and April 4. So this is April 1. Odisha has basically is celebrating this day every year on April 1st as Utkal Divas या फिर Utkala Divas. ठीक है? So yes, because of the independence. Can you tell me which year did Odisha get independence? When did it become an independent state? कौन से साल ओडिशा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना? Can you tell me? Since which year is this day celebrated as उत्कल दिवस और उत्काला दिवस? Very correct, 1953. Okay, 1953 में ओडिशा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, जिसकी वजह से हर साल ये दिन 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उत्कला दिवस ये मनाया जाता है ओडिशा स्टेट में. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक डिजाइन अनवील की है विच बैंक नोट? कौन से बैंक नोट की? विच फीचर्स ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग. 40 पाउंड्स, 80, 100 या फिर 50 पाउंड्स. द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज अनवील्ड द डिजाइन ऑफ विच बैंक नोट विच फीचर्स द ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड? 40 पाउंड्स, 80, 100 या फिर 50. So here the correct answer is 50 pounds. Okay, so Bank of England ने design of 50 Great Britain pounds banknote feature की है, which features British scientist and World War second code breaker Alan Turing. तो बेसिकली ये एक पॉलीमर नोट है जिसमें ट्यूरिंग का इमेज है और अदर रिलेटेड इमेजरीज भी शामिल है. एंड दिस बैंक नोट वॉज इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन June 23, which coincides with what would have been the mathematician's 109th birthday. So Alan Turing के 109th बर्थडे पर ये यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा 50 पाउंड्स का जो बैंक नोट है ये रिलीज किया गया है, ये अनवील किया गया है. आपको याद रखना है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू सेल इट्स यूके आर्म टू ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड? इनमें से कौन सा बैंक है जो ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को अपना स्टेक बेच रही है? HDFC, ICICI, Axis या फिर Yes Bank. Which of the following bank to sell its UK arm to Open Paid Holdings Limited? Very correctly answered as Axis Bank. Okay, so it's a private sector lender bank, Axis Bank, which has entered into a share purchase agreement for a sale of 100% in its subsidiary. So Axis Bank UK Limited, okay, will sell 100% stake in its subsidiary to Open Pay Holdings Limited. Okay guys, so याद रखें, Axis Bank will sell its UK arm to which company? Open Pay Holdings Limited को. Which banks has tied up with global e-commerce major Amazon and cards major Visa to launch a retail payments entity? ICICI Bank and HDFC, Yes Bank and Axis, HDFC and Yes, ICICI and
एक्सिस। तो इनमें से कौन से बैंक ने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की है और वीजा के साथ भी पार्टनरशिप की है टू लॉन्च अ रिटेल पेमेंट एंटिटी? मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर. Which bank has tied up with Amazon and the card major Visa to launch a retail payments entity? So this is ICICI and Axis. Okay, और Axis Bank और ICICI Bank दोनों ने एक strategic partnership में enter किया है. They have tied up with Amazon and Visa to launch a retail payment entity and which will be a rival to the state-owned NPCI. अब बेसिकली एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये को लेंडिंग करेंगे एंड दे विल एंटर इनटू अ कंसोर्शियम विद अ 20% ईच स्टेक, 20% आईसीआईसीआई का और 20% एक्सिस का. सो इसके अलावा और भी पार्टनर्स इस डील में शामिल है, जैसे अमेजॉन है, बिल्डेस्क है, पाइन लैब्स है और वीजा है, जिनका स्टेक 15% ईच का रहेगा. ठीक है, सो 20% एक्सिस का और आईसीआईसीआई का है, बाकी अमेजॉन, बिल्डेस्क, पाइन लैब्स और वीजा का 15% का स्टेक रहेगा और ये सब एक रिटेल पेमेंट एंटिटी लॉन्च कर रहे हैं. Where was Ayurveda Parav organized by Ayush Ministry in collaboration with Vinoba Seva Pratishthan? ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा. इनमें से आयुर्वेदा पारव आयुष मिनिस्ट्री द्वारा कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ कोलैबोरेट करते हुए आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेदा पर्व का ऑर्गेनाइजेशन किया था ओडिशा में. ओके, ओडिशा इज योर करेक्ट आंसर. याद रखिए गाइस, आयुर्वेदा पर्व was organized in Odisha. By whom it was organized? You need to remember. आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है इसे इन कोलैबोरेशन विथ विनोबा सेवा प्रतिष्ठान. Next question, who is the author of the book titled Wild and Willful, The Tale of 15 Iconic Indian Species? बुक के ऑथर कौन है? वाइल्ड एंड विलफुल, टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज. सृष्टि गाबा, मानसी छाबरा, नेहा सिन्हा, कृति देशमुख. यस, नेहा सिन्हा. ओके, नेहा सिन्हा इस बुक की ऑथर है जिन्होंने वाइल्ड एंड वाइल्डफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज को ऑथर किया है. नेक्स्ट, द स्टेट वाज ओरिजिनली कॉल्ड ओडिशा बट द लोकसभा पास द ओडिशा बिल अंडर डैश in March 2011 to rename its Odisha. Very very important guys. अभी हमने देखा था 1953 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था ओडिशा और इसी वजह से ओडिशा उत्कल दिवस भी हम 1 अप्रैल को मनाते हैं. अब यहाँ से आजकल जो बैंक एग्जाम्स में थोड़े हिस्टोरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओडिशा, द स्टेट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज ओडिशा बट द लोकसभा बिल, the bill was passed in Lok Sabha. The Odisha bill was passed under which amendment? Amendment बताना है आपको मार्च 2011 का, जिससे ये ओडिशा बना. वेरी वेरी करेक्ट आंसर इज 113th अमेंडमेंट. ओके, 113वीं अमेंडमेंट मार्च 2011 की. इसके बाद ओडिशा बिकेम ओडिशा. नेक्स्ट, which state's agriculture university has been selected for the Chancellor's Award 2020 in the category of specialized universities? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना. इनमें से किस स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चांसलर्स अवार्ड्स 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया है? स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में क्या वो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना? वेरी करेक्ट आंसर इज केरला. केरला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसे चांसलर्स अवार्ड 2020 कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे चुना गया है. गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार नंबर विद पैन अप टू विच डेट? ओके, सो पैन को आधार नंबर से लिंक करने के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा. कौन सी डेडलाइन रखी गई है? 31st August 2021, 30th June 2021, 31st July या फिर 30th of April 2021. वेरी करेक्ट.
विन है? द आंसर इज 30 जून 2021। लास्ट डेट रखी है फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विथ योर पैन। ठीक है, सो अब बेसिकली ये इश्यूज इसी वजह से हुआ, राइट? कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी कि हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होके यहाँ पर आधार को पैन से लिंक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ और समय यहाँ पर दे दिया है। Who among the following has won the Bahrain Grand Prix 2021? 2021 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? सेबास्टियन वेटल है, चार्ल्स लेक्लर्क है, मैक्स वर्स्टैपन है या फिर लेविस हैमिल्टन है? 2021 के बहरीन ग्रैंड प्रिक्स विजेता है लेविस हैमिल्टन। ओके, या द आंसर इज वेरी सिंपल, लेविस हैमिल्टन द विनर ऑफ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। According to the report by ACI Worldwide, which country stopped in the real-time payment transaction? 2020 के लिए रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में कौन से कंट्री ने टॉप किया है? ACI वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज किया गया था, जिसमें कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है? नेदरलैंड्स, इंडिया, चाइना या फिर USA? वेरी correct. The answer here is India has topped this. Okay, India has topped the ACI worldwide report in real-time payment transaction. Now let us see some more facts here. ACI worldwide ने नया रिपोर्ट रिलीज किया था indicating that 70.3 billion real-time payment transaction were processed globally in 2020. Okay, so global level पे real-time payment 70.3 बिलियन से ज्यादा हुए हैं as per this data, which is a surge of 41% compared to the previous year. पिछले साल के मुकाबले 41% का ग्रोथ रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस में देखने मिला है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने अपना टॉप स्पॉट को रिटेन किया है। 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस इंडिया के हुए हैं, followed by China with 15.7 billion transactions, and this report speculated that by 2024 the share of the real time payment volume in overall electronic transaction will exceed 50%. Okay, very important. यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया है रिपोर्ट के द्वारा कि 2024 तक के जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये 50% से ज्यादा एक्सीड करेंगे और ये फर्दर 71.7% 2025 तक के टच करेंगे। तो अभी के लिए हमें याद रखना है 41% का ग्रोथ देखने मिला है और इंडिया का टोटल ट्रांजैक्शन कितना है? 25.5 बिलियन का है विथ द टॉप पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवी मुंबई, अहमदाबाद एंड विच अदर वेन्यूज चोजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022? 2022 का AFC वुमेन एशिया कप इंडिया कहाँ पर होने वाला, यहाँ पर किसे चुना गया है? नवी मुंबई, अहमदाबाद और अदर वेन्यू कौन सा है? तीसरा वेन्यू कौन सा है? क्या वो सूरत है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है या फिर पुणे? वेरी करेक्टली आंसर, द आंसर इज भुवनेश्वर। यू हैव नवी मुंबई, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर। ठीक है, सो AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने इसके लिए कंफर्मेशन दिया है कि नवी मुंबई, एक्चुअली इट इज इन नेरुल, ओके, नेरुल में है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई का, और अहमदाबाद का ट्रांस स्टेडियम है और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर का है, जहाँ पे ये तीनों जो है AFC फुटबॉल वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 के लिए तीनों वेन्यूज को चुना गया है। ठीक है, अगला सवाल है हेडक्वार्टर्स बतानी है आपको AFC की। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कहाँ पर लोकेटेड है? कुआलालंपुर मलेशिया, मनीला फिलीपींस, बीजिंग चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन सिचुएटेड? वेरी वेरी करेक्टली आंसर पायल, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर्स है AFC की। एंड दैट वाज द फाइनल स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी के साथ हमने 15 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट कर लिए गाइस। आई होप आप सब रिवाइज करोगे, ओके, आई होप आप सब रिवाइज करोगे। एंड संडे को 11 बजे मैं कंपाइलेशन लूंगी, 11 से 12:30 का कंपाइलेशन आपका करंट अफेयर्स का मैराथन होगा अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। ओके, यू कैन जस्ट विजिट माय प्रोफाइल, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ओके, एंड यू कैन अनलॉक द फ्री प्लान ऑन अनअकैडमी यूजिंग माय कोड रूही लाइव।
ओके, इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं IBPS, SBI, RRB और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। ओके, जनरल अवेयरनेस बाय अभिषेक, and hope to see you in the next session. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice time. God bless you.